A very good afternoon to all of you. I am Shweta Tyagi, PGT Chemistry from Bhavaras Devras Saraswati Vidya Mandir. Today, I would like to teach you the haloalkanes and haloarenes chapter, and both the topics we will taught today, but one by one. So let us first of all we discuss what is haloalkanes. सो द जो आपका हेलो एल्केन उसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हेलोजन और एल्केन. एल्केन के साथ अगर हेलोजन ऐड है इट मीन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलो एंड एल्केन नोन एज हेलो एल्केन्स. एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन इज RX. देखिए, लेट सपोज दिस इज योर मॉलिक्यूल CH3Cl and this is your methyl chloride. Methyl chloride in this R group is your CH3 and chloride is your X. So the general formula of haloalkane is RX. In this R is your alkyl group and Cl is your halogen group. And then the monohalogen derivatives of alkanes are called alkyl halides. ऐसे मोनोहेलोजन लाइक X, Cl, Br, I ये सब क्या है? मोनोहेलोजन्स हैं. तो इन सब के डेरिवेटिव से और वो जो एल्केन्स के साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड. और their names are derived by naming the attached alkyl group to halogen and adding the name of the halides. और इनके नेमिंग्स जो होती है हेलो एल्केन्स की वो डिपेंड करती है कि अल्काइल के साथ कौन से हेलोजन्स आपके ऐड हैं और उन्हीं के बेसिस पर आप नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं. जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br. तो इथाइल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ क्या है? इथाइल है और हेलोजन ग्रुप आपका क्या है? Br. तो हेलोजन ग्रुप के बेसिस पर हमने क्या करा? इथाइल ब्रोमाइड इसको नाम दिया. ऐसे ही एन प्रोपाइल आयोडाइड. तो आयोडाइड आपका यहाँ पे क्या है? हेलोजन एटम है, दैट्स व्हाई वी कॉल एज नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड. So this is a basic introduction of haloalkanes naming general formula. Next, there are several also examples of haloalkanes. 2-chloropropane. तो हमने भी क्या पढ़ा कि अगर आपका जैसे जैसे हेलोजन अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ उसी के बेसिस पर आपके हेलो एल्केन्स की नेमिंग्स होती है. तो जब भी आप कभी भी हेलो एल्केन्स की IUPAC नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, फिर हेलोजन ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे एंड आफ्टर देन यू विल गिव द प्रेफरेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप. So for example, this is your 1-chloro 2,3-dimethyl propane. So these all are the examples of haloalkanes and all the alkanes containing one or more halogens group. Now IUPAC namings. तो आप IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे haloalkanes की? The monohalogen derivatives of alkanes are named as haloalkanes. ये हम पढ़ चुके हैं अभी. The position of the halogen atom and other substituent alkyl groups are indicated by suitable number, that is 1, 2 and 3. This rule states that in alkene how many halogen atoms should be attached. Let's suppose more than one halogen atom is present, so you will give a number like 1, 2 and 3. So this is your IUPAC naming rule. Alkyl halide. And this is your common name and this is your IUPAC name. Let's suppose this is your methyl chloride CH3Cl. तो इसमें एल्केन आपका क्या है? CH3 जो कि आपका अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ आपका क्या अटैच है? Cl, दैट इज योर हेलोजन ग्रुप. एंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अभी मैंने क्या बताया? सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, आफ्टर देन गिव अ प्रेफरेंस टू हेलोजन एटम एंड देन अल्काइल ग्रुप. सो इधर CH3Cl में सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे? हेलोजन ग्रुप को. तो दैट इज योर क्लोरोमीथेन. कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोइथेन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट द कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ haloalkanes. These are also the examples of haloalkanes. Now come to the next topic, that is your haloarenes. Haloarenes or aryl halides are named by adding the prefix halo, fluoro, chloro, bromo, iodo before the name of the aromatic hydrocarbon. In case of di-substituted compounds, the relative position of the substituents 1, 2, 1, 3 and 1, 4 are indicated by the prefix ortho, meta and para respectively.
तो इन शॉर्ट वी विल डिस्कस और वी विल सी इन दैट स्लाइड व्हाट हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि अभी जो हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे थे उसमें ऐसे कंपाउंड्स आ रहे थे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट, स्ट्रेट कंडेंस फॉर्म टाइप ऑफ। लेकिन हेलो एरीन्स में आप क्या देखेंगे कि आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन एटम आपका अटैच है तो उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। और अराइल हेलाइड्स, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था अल्काइल हेलाइड, तो उसमें हम RX ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अराइल हेलाइड लेंगे तो क्या होगा ARX। और AR आपका क्या है, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक क्या है, आपकी बेंजीन रिंग, और इसको हम बोलते हैं अराइल हेलाइड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसकी बेंजीन रिंग के ऊपर आपका हेलोजन एटम लग रहा है उसे आप बोलते हैं हेलो एरीन्स, राइट। ये तो आपकी एक बात हुई हेलो एरीन्स के लिए। लेकिन आपके जो हेलोजन्स होते हैं वो किस किस पोजीशन पे लगेंगे, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो बेंजीन में 3 तरह की पोजीशंस होती है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। देखिए ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, तो ये किसका एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का कैसे, दिस इज योर एरीन, बेंजीन रिंग एंड attachment of halogen group on the benzene ring. So this is your chlorobenzene, this is your bromobenzene. All are the example of haloarenes, and haloarenes, as we all know that on aromatic ring presence of halogen group it known as haloarenes, and its general formula is ARX. अब now nature of CX bond, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन के साथ अगर आपका हेलोजन बॉन्ड अटैच है तो किस तरह का नेचर होता है उसका। तो इन दिस रिएक्शन हैलाइड इन्वॉल्व्स द CX बॉन्ड, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द CX बॉन्ड, स्मॉलर द इज एक्टिविटी। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। ये क्या बता रहे हैं, ये हम एक्चुअली CX क्या, ये हम इसकी जो हेलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे आपका एटम का जो साइज है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपको ज़्यादा चाहिए। अगर ऊपर से नीचे जाते साइज बढ़ता जाता है, एटम क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता जाता है। तो ये सब बेसिस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है साइज के एटम के बढ़ते बढ़ते, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका वो क्या होता है, बहुत कम होता जाता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो हमें क्या चाहिए होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन रिएक्टिविटी। जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी कम होगी, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, और हम ये बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अगर आपका साइज कम हो रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। Here the reactivity increases from alkyl chloride to ब्रोमाइड्स। आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कहाँ से होती है, एल्काइल क्लोराइड से लेके ब्रोमाइड्स तक, एंड फ्रॉम ब्रोमाइड्स टू आयोडाइड। पहले होगी क्लोराइड से ब्रोमाइड, फिर होगी आपकी ब्रोमाइड से आयोडाइड्स। इन द हेलो डेरिवेटिव्स द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम। इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि हेलो डेरिवेटिव्स में आपका जो हेलोजन एटम है इट ऑलवेज बी अटैच्ड टू द कार्बन एटम एज द हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, क्यों, क्योंकि हम किसका अटैचमेंट देख रहे हैं, बेसिकली हेलोजन्स का देख रहे हैं। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज पोलर इन कैरेक्टर।
आप देख सकते हैं ये आपके कार्बन है, कार्बन पे कितने बॉन्ड्स है, 4, कार्बन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड एक्स कंटेनिंग अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर इन पोलर इन नेचर. And now method of preparation of haloalkenes from hydrocarbons. Now come to the main topic in that chapter कि आप haloalkenes को prepare कैसे करेंगे with the help of hydrocarbons. So haloalkenes can be prepared from alkanes and alkenes when the halogen atom replaces the hydrogen atom. क्या बता रहे हैं कि हम अपने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप अपने हाइड्रोजन एटम्स को, जो कि आपके एल्केन्स या एल्कीन्स में प्रेजेंट हैं, उनके हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, हैलोजन एटम से, तो आपके क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन्स. देखिए जैसे कि ये आपका मीथेन है, ये हमने रिएक्शन 9th 10th 11th में पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो जब आपने इसकी क्लोरीनेशन कराया, क्लोरीनेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो आप क्या नोटिस करेंगे, आपका क्या होगा, एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl क्लोरोमीथेन. फिर अगेन यू शुड क्लोरीनेशन डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्लोरीनेशन कराएंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, उसके बाद फिर क्लोरीनेशन कराएंगे आप, तो क्या बनेगा आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन. तो व्हेन प्योर कंपोनेंट्स आर नीडेड दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्योर कंपाउंड्स चाहिए तो वो किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब क्या है, फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन से हेलो एल्कीन्स कैसे बनाएंगे, दिस इज योर ईथेन रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड. अब क्या होगा, जब हैलोजन एसिड से रिएक्ट करेंगे, एक एच आपका इस कार्बन के पास चला जाएगा, CH3, उसके बाद एक जो इसके यहाँ से वैलेंसी फ्री हुई दैट इज योर CH2 और क्या लग जाएगा यहाँ पर X. तो ये अब क्या बन गया, हेलो ईथेन, हेलो एल्केन, CH3 CH2 X. X आपका क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है एज वेल एज Br ऑल्सो. एंड देन दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्यूट-2-ईन को जब आपने HBr के साथ रिएक्शन कराया, तो ये क्या होता है क्लास, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जहां भी आपका HBr लगता है, इट मीन्स दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिफ्स रूल. मार्कोनिफ्स रूल क्या होता है, मार्कोनिफ्स रूल ये होता है कि जहां पर आपकी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, ठीक है, जहां पर आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जिस कार्बन के साथ, तो वहां जाके आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो अटैच हो जाता है. तो इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिफ्स रूल. जैसे कि ये क्या है आपका, ब्यूट-2-ईन HBr के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक, तो क्या हुआ, CH3 CH2, यहाँ आपका क्या लग जाएगा, CH पे Br एंड CH3. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन. अब आ जाइए आप मार्कोनिफ्स रूल्स पे जो मैं बता रही थी. द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. यही आपको बताया कि आपका जो कार्बन है वो कहाँ, जो आपका नेगेटिव पार्ट है हेलाइड्स वाला, वो कहाँ जाके अटैच होगा, जहां पर आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे. while the positive goes to the carbon atom with more number of hydrogen atom. और जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा वो वहां जाके अटैच हो जाएगा जहां पर क्या होगा, आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट. ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है. एंटी मार्कोनिफ्स रूल हमेशा HBr के साथ तो होता है, लेकिन ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड. किसकी प्रेजेंस में होगा, पर ऑक्साइड, such as benzoyl peroxide. The reaction takes place against Marconi's rule. तो अगेंस्ट का मतलब क्या है, इसमें आपका वो फिनोमिनन या वो फंडा अप्लाई नहीं होगा कि जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आके अटैच हो जाएगा. इट इज वाइस वर्सा ऑफ द मार्कोनिफ्स रूल. एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बोथ दीज रूल्स, बाय यूजिंग द पर ऑक्साइड इफेक्ट.
एंटी मार्कोनीस रूल को हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इफेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, ब्यूटीन को HBr के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, आपको क्या मिला, 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH3CH2CH2Br। तो यहाँ लिखा भी है मैंने, एंटी मार्कोनिस रूल और पर ऑक्साइड इफेक्ट अप्लाइज टू द एडिशन ऑफ HBr ओनली एंड नॉट टू द एडिशन ऑफ HI और HCl। सो ये आपको याद करना है, आपको ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस रूल इज नॉट अप्लाइंग फॉर HI और HCl। नाउ फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, इसको हम ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। सो ये क्या है आपका इथेनॉल, CH3CH2OH प्लस HCl। तो इथेनॉल है ये, CH3CH2OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक। आपको क्या मिलेगा, क्लोरोइथेन, और इसका हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन अबव रिएक्शन। क्वेश्चन क्या आता है कि इसका जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है इसका फंक्शन क्या है, क्यों हमने यूज किया एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हमने, व्हाई वी विल यूज दैट रिएजेंट दैट इज योर एनहाइड्रस जिंक। देखिए OH ये क्या बना दिया आप, इन्होंने इनका टर्शरी हैलाइड बना दिया। एक कार्बन पे कितने आपके एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, 3, CH3 एंड CH3। सो क्या बना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस वाटर और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से भी आप अपने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्या है आपका, इथेनॉल प्लस KBr प्लस H2SO4, उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोइथेन प्लस KHSO4 प्लस वाटर। एक बात और बेटा, जो हमने भी अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ी थी, तो इसमें क्या होता है, HCl और एनहाइड्रस जिंक के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। और इस हम मिक्सचर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अल्कोहल्स को, हैलाइड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाए कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है। तो कैसे करते हैं, अगर हमने इन दोनों रिएजेंट्स को ट्रीट कराया और अगर हमारा जैसे ही हमने इसको रिएक्शन कराया और हमारे को क्विक, बिल्कुल एकदम फास्ट PPT इज फॉर्म, दैट मीन्स योर अल्कोहलिक इज टर्शरी इन नेचर। कुछ टाइम बाद आया, इट मीन्स दैट कि आपका क्या है, सेकेंडरी है। और बहुत टाइम बाद आया तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या है, प्राइमरी इन नेचर। So the role of this mixture HCl and anhydrous zinc, that is known as your Lucas reagent, and the role is that differentiate between the 3 degree, 2 degree and the 1 degree। देखिए नेक्स्ट क्या है, by the action of phosphorus halides। अगर हम phosphorus halides के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोइथेन एंड फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज योर H3PO3। ब्रोमोएल्केन एंड आइडोएल्केन आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ PBr3 एंड PI3। अगर ये तो मैंने क्लोरीन बनाया तो इसलिए मैंने यहाँ PCl3 लिया, लेकिन अगर मुझे Br बनाना है, I बनाना है, तो इसकी जगह मैं क्या लेती, PBr3, आइदर वी विल टेक एज अ PI3। तो मुझे यहाँ पे ब्रोमोइथेन या आइडोइथेन मिलता, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ किसका चेंज होगा, फॉस्फोरस के साथ। यू कैन चेंज द हेलोजेंस and are not very, as PBr3 and PI3 are not very stable compounds। क्या होते हैं PB3, ये आपको पता होना चाहिए, Br3 PI3 बहुत ज़्यादा stable compounds नहीं होते हैं। They are prepared in situ by the action of red phosphorus on Br2 और EI2। इसी वजह से जब भी आप फॉस्फोरस को किससे एक्शन कराते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्योंकि भाई रेड फॉस्फोरस और HI बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, किसी को भी रिड्यूस कर देते हैं। तो इसी वजह से हम किसको यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस, किसके ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर या फिर आयोडीन के ऊपर। नाउ विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या है आपका, SOCl2। जब आपने अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, क्या बना, थायोनिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। तो इस मेथड को हम प्रेफर करते हैं देन अदर मेथड।
This method is preferred than other method because both the products of the reaction SO2 and HCl are gases and can easily escape leaving behind pure alkyl halide. तो क्या कर रहे हैं कि हम और मेथड से ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि बोथ आर द गैसेस SO2 एंड HCl. SO2 एंड HCl. तो गैसेस क्या हो जाती हैं? एस्केप हो जाती है, ऊपर फॉर्म में चली जाती है इन फॉर्म ऑफ स्टीम. और क्या लेफ्ट हो जाएगा आपका? प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड. सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड एंड वी विल जनरली अप्लाइंग और प्रेफर ओनली दैट मेथड विथ थायोनिल क्लोराइड. एंड नाउ बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. इस रिएक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है क्लास, जैसे क्या है फिंकलस्टाइन रिएक्शन. तो ये रिएक्शन ही अपने में बता रही है कि आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है, कौन सा हैलोजन मिलेगा आपको फिंकलस्टाइन रिएक्शन में, कौन सा मिलेगा. देखिए इस फिंकलस्टाइन रिएक्शन में 2 बार आई आ रहा है, 1 टाइम एंड दिस इज योर सेकेंड टाइम. सो द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 टाइम ऑफ आई रिप्रेजेंट दैट द प्रिपरेशन ऑफ आइडो हैलोजन. कौन से हैलोजन के लिए यूज करते हैं हम इस रिएक्शन को? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन. देखिए जैसे आपने लिया RX इथाइल ब्रोमाइड, किसके साथ ले रहे हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ. और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इसको जब आपने हीट किया तो क्या बन रहा है आपको? आइडोइथेन. तो ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर फिंकलस्टाइन रिएक्शन आ रही है तो ये रिएक्शन ही आप अपने में बता रही है कि हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? आइडोइथेन. उसके बाद आपकी क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड. इस मर्क्यूरस फ्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फ्लोरोइथेन प्लस Hg2Cl2. तो दिस इज कॉल्ड अ स्वार्ट्स रिएक्शन. अब फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड से करेंगे बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन. जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से हो रही है रिएक्शन तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन. सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए ये क्या है? CH3COO. अगर इसमें से H रिप्लेस हो गया तो इसकी जगह क्या लगा? Ag प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज अ सॉल्वेंट. और आपको क्या मिलेगा? ब्रोमोइथेन प्लस CO2 प्लस AgBr. तो इसमें जब आपको मिलता है ब्रोमीन के साथ इसके साथ रिएक्ट आते हैं इन प्रेजेंस, तो आपको मिला ब्रोमोइथेन प्लस CO2 प्लस AgBr. नाउ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरिन्स. अब हम किसकी प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे? हेलोएरिन्स के. सबसे पहले क्या? डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग. डायरेक्ट आप किसकी रिएक्शन करा दीजिए? हेलोजन्स की. किसकी प्रेजेंस में? FeCl3. तो क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl. ऐसे ही अगर आपने FeBr3 के साथ कराया तो ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr. सिंपल है. हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो हेलो एरीन्स होती हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स का करेंगे जब आप, तो इसमें आपका कैसा सब्स्टिट्यूशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो इसका मतलब क्या है? जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपना पॉजिटिवली चार्ज सब्स्टिट्यूट होकर किसको ऐड कर लेगा? नेगेटिव पार्ट को, दैट इज योर हैलाइड. देखिए टू जनरेट इलेक्ट्रोफिलिक विच अटैक द बेंजीन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो ये क्या आपका? क्लोरोबेंजीन Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में किया तो क्या मिला आपको? ऑर्थो और पैरा. ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. तो क्लास आपको याद रखना है एरीन्स में हमेशा आपको 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा. तो अब आप जब 2 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो हम उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारा कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है? तो हमें पता है कि पैरा इज योर मेजर प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि पैरा हैज अ हाई सिमेट्री. क्या होती है? पैरा में ज्यादा सिमेट्री होती है एज कंपेयर टू द ऑर्थो. दैट्स वाई पैरा इज कंसिडर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज कंसिडर्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट. सैंड-मेयर्स रिएक्शन. सेकेंड इज योर सैंड-मेयर्स रिएक्शन. सैंड-मेयर रिएक्शन क्या है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो ये क्या होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव? इसको हम बोलते हैं BDC. BDC क्या है?
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीसी, तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ CuCl and HCl you give a chlorobenzene plus nitrogen plus HCl. Now your next reaction is your Gattermann's reaction. When benzene diazonium chloride is treated in presence of copper and HCl, आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। और अगर आपको आइडो कंपाउंड्स बनाने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म कर दीजिए प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आपको क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज योर बाल्सैमिन रिएक्शन। बाल्सैमिन रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब आप HbF4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। हीट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस नाइट्रोजन। तो बेसिकली दिस रिएक्शन में आप क्या बना रहे हैं, फ्लोरो कंपाउंड, फ्लोरोहेलाइड। तो HbF4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी सॉल्युबिलिटी है। हैलो एल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एंड थॉट दे आर पोलर इन नेचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो ये सॉल्युबल होंगे ही नहीं, क्योंकि जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वही क्या होते हैं, वेरी सॉल्युबल इन नेचर। सो इसमें सॉल्युबिलिटी होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, सो दे प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो प्रैक्टिकली ये कैसे हैं आपके, इनसॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड फॉलो दैट ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, आयोडीन, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। वेयर आर आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप है। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन डबल फोर्सेज इंक्रीजेज एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी वन डबल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो साइज है वो भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। उसकी वजह से आपका वन डबल फोर्स इंक्रीज होगा और आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इट स्टार्ट्स इंक्रीजेस। थैंक यू क्लास, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हैं क्लास में, और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।